Hello, children. Welcome to Devati Modi Public School, Class 6, Subject Science, Chapter 9 The Living Organisms, Characteristics and Habitat, Part 1. Dear children, in this part, we are going to cover three main topics: organisms and their surroundings, habitat and adaptation, types of habitat, that is terrestrial. Let's begin the chapter here. Pahili and Bujo, these are the two characters in your book. They go for vacation and they visit mountain, desert in Rajasthan and coastal areas and some other places also. They see different types of plants and animals in these different places, and they came to know that the plants and animals that live in these different places are quite different from each other. So, all these places were so different from one another. Some were cold, some were very hot and dry, and some places so humid. And yet, all of them had many organisms, living creatures that are called of various kinds. So, what are these organisms? What do you mean by organism? Well, organism means any living being, a living thing that varies in size and shape. It is a structural unit that carries chemical and life process. When the life process stops, they die. All organisms are unique, though they share many similarities. It means living organism, living things क्या है? Living things organism होते हैं, जैसे plants and animals. एंड सभी के अंदर लाइफ के सभी प्रोसेस उन्हें जिंदा रखने के लिए होते हैं. जिस दिन ये लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाते हैं उसी दिन ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो जाती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो. सभी ऑर्गेनिजम्स अपने आप में यूनिक हैं. दे हैव सिमिलैरिटीज बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ऑर्गेनिजम्स आर यूनिक एंड मेड ऑफ सेल्स. जैसे कि सभी आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों या अनदर स्मॉलर लिविंग बीइंग हो या कोई बड़ा एनिमल हो, सभी अपने आप में यूनिक हैं और सेल से बने हुए हैं. इट मीन्स एक सेल से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग होती है. एंड दे परफॉर्म वेरियस स्ट्रक्चर and function. The number of cells may vary in the organisms. कुछ में ये एक भी हो सकते हैं. एंड जैसे जैसे एनिमल्स बड़े होते हैं they can have millions of cells also. So it depends on the size of the organism. Organisms have a number of characteristics that classify them as living or नॉन लिविंग कंडीशन. हम सभी चीज़ों को लिविंग नहीं कह सकते हैं. कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग कौन है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो हियर इज एन एक्टिविटी गिवन इन योर बुक. इन दिस एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू डू? You have to collect some pictures of animals, plants, and other objects that are found in different surroundings. And you have to arrange them in this table accordingly. In the first column, you have to collect some pictures that are seen in the forest. That means plants and animals that are seen in the forest or on the mountains, in the desert, in the sea, or if they are living in any other place. Habitat and adaptation. We all know that plants and animals are found everywhere and they are found in water also, in air or on land. And in sea also we can see different types of plants and animals. The
Animals or plants that are found in sea, the water is not normal as we see in ponds or lakes. The water of that sea is saline, that means salty. So some of the plants and animals can live in the salty water, and they can, and some of the organisms like bacteria, they can also live in the extremely hot places like in volcanoes. The different plants and animals that we see in our surroundings are special, or they have some special features in their body so that they can live in that particular place. So what is a habitat? Let's know. A habitat is the place where an animal or plant lives. It can be water, it can be air, it can be on land. It means जहाँ पर कोई भी प्लांट या एनिमल सरवाइव करता है, रहता है, उस प्लेस को ही हम उसका हैबिटेट कह सकते हैं. जैसे एक फिश पानी में रहती है, तो पानी क्या हुआ? पानी उस फिश का हैबिटेट हुआ. कैमल्स कहाँ रहते हैं? और वेयर वी कैन सी द कैमल्स? वी कैन सी द कैमल्स इन द डेजर्ट. इट मीन्स डेजर्ट क्या हुआ? डेजर्ट, वहाँ का desert is the habitat for camels. A habitat means the dwelling place, a home, the surroundings in which a particular organism, plant, animal, or any other organism lives is called its habitat. The organisms depend for their food, water, air, light, shelter and other needs on their habitat. It means जिस जगह पर कोई प्लांट या एनिमल रहता है, वो प्लेस कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी प्लेस होनी चाहिए जो उसे फूड, वाटर, एयर, लाइट या शेल्टर, रहने की सेफ प्लेस उनको प्रोवाइड कर सके. ए हैबिटेट प्रोवाइड्स एवरीथिंग. इट मीन्स जो एनिमल या प्लांट जिस हैबिटेट में रहते हैं, वो हैबिटेट उन्हें वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव, या फिर सेम हैबिटेट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स भी सर्वाइव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन पॉन्ड वी कैन सी वाटर प्लांट्स like lotus, lily, or we can see fish in the same place, or we can see frogs also. So it means the same habitat can be shared by different types of organisms. Components of habitat. Habitat किन चीज़ों से बना हुआ है? Habitat दो चीज़ों से मिलकर के बना है, biotic and abiotic. Bio means living. So biotic means क्या हुआ? Living components of a habitat, जिसमें plants and animals होते हैं. And abiotic means non-living components या non-living things. Example, rocks, soil, air, water, temperature, ये सभी क्या हैं? ये सभी abiotic या non-living components हैं. डिफरेंट टाइप के सराउंडिंग्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स या प्लांट सर्वाइव करते हैं. लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई एनिमल या प्लांट दूसरे हैबिटेट में जाकर के सर्वाइव नहीं कर सकता? फॉर एग्जांपल, फ़िश का अगर हम एग्जांपल लें तो फ़िश सिर्फ पानी में ही सर्वाइव कर सकती है. या अगर हम बात करें स्नोई प्लेसेस की, या जो माउंटेन्स पर रहने वाले प्लांट्स या एनिमल्स हैं, वो प्लेन रीजन्स में क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते? बिकॉज उनकी बॉडी ऐसी प्लेसेस के लिए ही अडेप्टेड होती हैं जो उनको ज़िंदा रख सकें. इट मीन्स उनकी बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जो उनको उस पर्टिकुलर हैबिटेट में ज़िंदा रखने के लिए बने हैं. जो ये फीचर्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स जो उन्हें उस पर्टिकुलर प्लेस में रहने के लायक बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन.
the presence of specific features or certain habits which enable a plant or an animal to live in the surroundings is called adaptation. Adaptation are very slow changes that take place over thousands of years in the bodies of organisms. It means adaptation किसी एक दिन में बनने वाला चेंज नहीं होता है, किसी एक थोड़ी टाइम में बना हुआ कोई स्पेशल फीचर नहीं होता है. इट मीन्स ये प्लांट की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में एक धीरे धीरे होने वाले चेंजेस हैं या धीरे धीरे होने वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो बनने में बहुत टाइम लेते हैं, बहुत साल लेते हैं. अचानक से एकदम कोई चेंज नहीं होता. सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड स्लो प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैमल्स की बात करें तो कैमल कैन सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट बिकॉज changes have taken place in their body over a long period of time, which enables them to survive in deserts with little water availability. आप जानते हैं कि डेजर्ट में शॉर्टेज होती है पानी की एंड फूड की, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है. तो ऐसी प्लेसेस में सर्वाइव करने के लिए कैमल्स में जो स्पेशल फीचर्स डेवलप हुए हैं, it is a process of long period. All organisms need to adapt to their habitat to be able to survive. Those animals which cannot adapt to these changes die out and only the adapted ones survive. तो जो organisms उस पर्टिकुलर हैबिटेट में जिंदा रहते हैं, इट मीन्स उनके अंदर अडेप्टेशन हो गया. इट मीन्स उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर वो स्पेशल फीचर्स डेवलप किए हैं जिसकी वजह से वो उस जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन जो प्लांट या एनिमल अपनी बॉडी को उस एनवायरनमेंट या उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते हैं, देन दे विल नॉट सर्वाइव, दे विल डाई. सो adaptation means special features or special characteristic that are developed in a body of organism. But some of the changes are not adopted from a long period of time. They are changed और कुछ टाइम के लिए वो बनते हैं and again they are back to the position of the same position of an organism. For example, अगर आप plains में रहते हैं and you go to high mountain regions, तब आप experience करते हैं difficulty in breathing and doing some physical exercises कुछ दिनों के लिए for some days. We need to breathe faster to get sufficient oxygen जब हम ऊपर mountains पर जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल लो होता है. तो हमारी क्या ज़रूरत होती है, हमें क्या चेंज करना होता है अपनी बॉडी में, हमें ब्रीदिंग रेट अपना इंक्रीज़ करना होता है. लेकिन जब हम वापस अपने प्लेन रीजन में आ जाएं या जहाँ से हम आए उसी कंडीशन में हम पहुँच जाएं, तो हम बैक टू अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं. लेकिन अगर हम माउंटेन्स पे जा रहे हैं एंड आफ्टर सम डेज जब हम वहाँ रहने लगते हैं तो वो चेंजेस हमारी बॉडी का एक हिस्सा बन जाते हैं. सो हम उसके लिए अडेप्टेशन नहीं बोलेंगे, दैट इज़ एक्लिमेटाइजेशन. सो स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस in the body of a single organism over a short period to overcome small problems due to changes in the surroundings are called acclimatization. It means small changes जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए होते हैं किसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए या उस चेंज को ओवरकम करने के लिए, that is called acclimatization. These changes are different from the adaptation that take place over thousands of years. मीन्स अडेप्टेशन एक लंबा प्रोसेस है जिसे होने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन एक्लिमेटाइजेशन एक शॉर्ट पीरियड का चेंज होता है. नाउ लेट अस नो अबाउट द टाइप्स ऑफ हैबिटेट. कौन कौन से हैबिटेट हैं? वैसे तो हैबिटेट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस पार्ट में हम कुछ मेन हैबिटेट्स के बारे में जानेंगे.
लेट्स सी, हैबिटेट मेनली 2 पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट. Terrestrial habitat can be divided into 3 parts here: deserts, mountains, grasslands. Aquatic habitats, oceans and ponds. So let's know about the desert here. Desert क्या है? Desert is a terrestrial habitat which has hot and dry climate. It has less rainfall. So it is the area of high temperature and less rainfall. We can see some examples of animals and plants here, like camels, snakes, lizards, rats, cactus, agave, date palm. All these are the examples of organisms that are found in desert plants. Let's see the adaptations that are present in camel to survive there. We can see hump, long legs, long eyelashes, wide and flat feet, free layers of eyelid, etc. Now let us see how these adaptations help camel to survive there. As you can see here, hump. Why it is, or how does it help the camel? Hump helps to store food as fat to provide energy for long periods of time in desert. As you know that in desert there is shortage of food and water. तो कैमल क्या करता है? कैमल एक साथ बहुत पानी पी लेता है एंड अपनी बॉडी में वो स्टोर करके रखता है. खाना जो वो खाता है एक साथ काफ़ी खाना खा लेता है और उसको अपने हम्प में जाकर के वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. जब शॉर्टेज होती है खाने की तो वही फैट उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है. Long eyelashes to keep sand out of eyes. कैमल की eyelashes कैसी होती हैं? बहुत लॉन्ग होती हैं. इससे उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है? जो सैंड उड़ती है वो उनकी आइज़ में नहीं जा पाती, वो उनकी आइज़ को कवर कर लेती है. Thin nostrils that can be closed to prevent sand blowing in. उनके जो nostrils होते हैं वो काफ़ी प्रिवेंटिव होते हैं. इट मीन्स वो ईजिली क्लोज कर सकते हैं अपने नॉस्ट्रल्स को, जिससे वो सैंड को अपनी नोज में जाने से रोक सकते हैं. यू कैन सी हियर लॉन्ग मस्कुलर लेग्स दैट अलाउ कैमल्स टू वॉक फॉर माइल्स अक्रॉस द डेजर्ट. लंबे उनके लेग्स होते हैं. लंबे लेग्स होने की वजह से एक तो वो सैंड पर ईजिली चल पाते हैं, उनकी हीट से, सैंड की हीट से अपने आप को दूर रख पाते हैं एंड हैवी लोड को कैरी कर पाते हैं. लेदरी नीज टू हेल्प प्रिवेंट बर्निंग व्हेन नीलिंग ऑन हॉट सैंड. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके नीज कैसे होते हैं, ये लेदरी होते हैं. तो जब ये कैमल्स बैठते हैं, नील डाउन होते हैं, तब उनकी यही नील्स उनकी सैंड में बैठने में हेल्प करते हैं एंड उनको उस हीट से बचाते हैं. Wide feet, as you can see here, the feet are wide, flat. Wide feet help to spread the camel's weight and make it easier to walk on sand. Leathery pads protect from heat and act like snowshoes to help prevent it sinking. अब जो इनके ये लेदरी पैड्स होते हैं ये फ्लैट होते हैं, जिससे कि इनकी बॉडी का वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सैंड पर एंड वो ईजिली उस पर चल सकते हैं. इट prevented sinking and they can walk easily on the sand. They function like snowshoes. जैसे माउंटेन्स पे रहने वाले प्लांट्स या माउंटेन पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लेग्स, या स्नो रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी लेग्स में स्नो शूज़ की तरह फंक्शन होता है. ठीक वैसे ही ये कैमल्स के जो पैड्स होते हैं ये उनके लिए एक स्नो शू की तरह काम करते हैं जो उनको सैंड हीट से प्रिवेंट करते हैं. दे हैव वेरी लॉन्ग इंटेस्टाइन टू रीअब्जॉर्ब as much water as possible from foods eaten.
अब देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका कैमल का, लॉन्ग इंटेस्टाइन, जो क्या काम करता है, रीएब्जॉर्ब एज मच एज वाटर एज पॉसिबल फ्रॉम फूड्स ईटन। जो भी वो खाना खाते हैं उसमें से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ये इंटेस्टाइन इनके। तो इस तरह से ये अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ वाटर। थिक फर टू कीप द सन्स हीट अवे ड्यूरिंग द डे बट प्रोवाइड वार्मथ एट नाइट। क्योंकि डेजर्ट एरिया में दिन में बहुत गर्मी होती है एंड रात में ठंडी होती है, तो इनकी बॉडी पर जो ये फर होता है ये उन्हें रात में उनको ठंड से बचाने का काम करता है, लेकिन एट द सेम टाइम दिन में उन्हें वो हीट से प्रिवेंट करता है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स और adaptations in the camel's body that make them to survive easily in the desert. Let's see about these animals. Some of the animals do not come out during the day. तो क्या करते हैं वो, ये एनिमल्स बरोज बना करके अंदर रहते हैं, सैंड में बरोज बना लेते हैं ये। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द डे टाइम सन हीट की वजह से सैंड बहुत गर्म होती है, लेकिन जब वो बरोज बनाते हैं अंदर की तरफ सैंड ठंडी होती है, जो उन्हें ऊपर आने से जो गर्मी में उनको नुकसान पहुंच सकता है, तो इसलिए वो अपने आप को उन बरोज में छिपा करके रखते हैं, बरोज में ही रहते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, और वो उन्हें वहाँ उसकी ठंडक से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन रात के टाइम वो बाहर आ जाते हैं। सम प्लांट्स इन द डेजर्ट, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, दिस इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर हम उन्हें देखते हैं कि या तो उनकी लीव्स बहुत पतली होती हैं, या लीव्स जो हैं रिड्यूस हो जाती हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो देखते हैं इनकी क्या क्या अडेप्टेशंस है। लीव्स आर एब्सेंट और रिड्यूस्ड और मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। जो कैक्टस होता है उनकी आप अगर लीव्स देखें तो उनमें आप देखेंगे कि स्पाइंस आप देखोगे। स्पाइंस क्या हैं? एक्चुअली स्पाइंस जो हैं उनके लिए उनकी रिड्यूस्ड लीव्स हैं, लीव्स कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइंस में, क्योंकि वाटर की शॉर्टेज होती है डेजर्ट में। तो अगर इनकी लीव नॉर्मल प्लांट्स की तरह होंगी तो ट्रांसपिरेशन की वजह से ज़्यादा पानी बाहर जाएगा एंड उनकी बॉडी में फिर वाटर की शॉर्टेज होगी। सो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए इनकी लीव्स स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और लीव का जो फंक्शन होता है दैट इज़ फूड बनाने का, फोटोसिंथेसिस का, इट इज़ डन बाय द स्टेम। सो स्टेम इज़ ग्रीन एंड डज फोटोसिंथेसिस। सो जो आप यहाँ देख रहे हैं ये ग्रीन कलर, दिस इज़ द स्टेम ऑफ द कैक्टस प्लांट। ये मॉडिफाइड हो जाते हैं एंड जो लीव का फंक्शन होता है फूड बनाने का प्रोसेस, इट इज़ डन बाय द स्टेम, एंड स्टेम के अंदर ही वाटर स्टोर होता है, सो इट बिकम्स थिक एंड फ्लैशी, एंड दीज टाइप ऑफ स्टेम्स आर कॉल्ड सकुलेंट स्टेम्स। रूट्स कैसी होती हैं इनकी? रूट्स इनकी काफ़ी डीप होती हैं, क्योंकि पानी जो है डेजर्ट में बहुत गहराई में मिलता है। सो ईच एंड एवरी ड्रॉप को कलेक्ट करने के लिए उनकी रूट्स काफ़ी डीप चली जाती हैं, जिससे वो पानी ठीक से एब्जॉर्ब कर सकें। थिक वैक्सी लेयर ऑन स्टेम प्रिवेंट्स वाटर लॉस। जो ये स्टेम्स होती हैं ये कैसी होती हैं? वैक्सी होती हैं। इनके ऊपर वैक्स का कवर होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर इन्हें बचाती है वाटर लॉस से। इट मीन्स जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो सकता है उससे ये इनको प्रिवेंट करते हैं। नाउ हियर वी कैन सी एन एक्टिविटी 3। हमें देख सकते हैं इस एक्टिविटी में कि किस तरह से एक नॉर्मल प्लांट एंड एक डेजर्ट प्लांट में वाटर लॉस के थ्रू किस में वाटर लॉस ज़्यादा होता है। सो फॉर दिस एक्टिविटी व्हाट वी कैन टेक 2 different plants, one desert plant
like cactus, and the other one is a normal plant found in plain region. हम पॉलीथीन से कवर कर रहे हैं इस लीफ को, इनकी लीफ को, एंड इनको धूप में रखते हैं. तो व्हाट वी विल सी, हम ये देखेंगे कि जो कैक्टस प्लांट है इसमें पानी की कम ड्रॉप्स हमें पॉलीथीन पर दिखाई देंगी, लेकिन जो नॉर्मल प्लांट है उसमें हमें ज़्यादा दिखाई देंगी. तो इससे क्या प्रूफ मिलता है? इससे ये प्रूफ मिलता है कि जो डेजर्ट प्लांट है उनमें वाटर लॉस कम होता है कंपैरेटिवली द नॉर्मल प्लांट्स इन प्लेन रीजन्स. ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन माउंटेन रीजन्स. जैसा कि आपको मालूम है माउंटेन रीजन्स का क्लाइमेट कैसा होता है? कोल्ड होता है. इट हैज़ कोल्डर क्लाइमेट. सो वहाँ पर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स और इन प्लेन रीजन्स. What kind of animals we can see there? We can see like leopard, yak, goats, etc. Let us know what are the adaptation in these animals and plants. Some of the examples are oak, pine, deodar. These are the plants. And as you can see here, snow, leopard, yak, sheep, mountain goat. These are the examples of animals that we see in the mountain regions. And these are the animals that are seen in polar regions. जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में होता है, जहाँ पर हमेशा स्नोफॉल रहता है. हो गया. Adaptations in mountain animals. Let's see what are these adaptations. Animals living in the mountain regions have thick skin of fur to protect them from cold. तो ऐसे रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स की कैसी स्किन होती है? दे हैव थिक स्किन. दे हैव थिक स्किन और फर. उनकी बॉडी पर क्या होता है? एक तो फर होता है. वी कैन सी क्लियरली द फर ऑन द बॉडी एंड वी कैन सी दे हैव थिक स्किन. तो ये क्या काम करता है? ये उन्हें वार्मथ प्रोवाइड करता है, इंसुलेटर का काम करता है. याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म. कुछ एनिमल्स में जैसे कि याक, उनमें उनकी बॉडी पर लॉन्ग हेयर होते हैं जो उन्हें उनके अंदर गर्मी बनाए रखते हैं. स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज. दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो. सो स्नो लेपर्ड की बॉडी पर थिक फर होता है उनके पैरों तक जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है ठंड से. द माउंटेन गोट हैज़ लॉन्ग हेयर टू कीप बॉडी वार्म एंड स्ट्रॉन्ग हूव्स. जैसे कि आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या हैं? दीज आर द स्ट्रॉन्ग हूव्स. दीज आर द स्ट्रॉन्ग हूव्स हियर यू कैन सी. ये किस काम आते हैं? ये उनको माउंटेन पर चलने के काम आते हैं सो दैट दे कैन ईजिली climb on the mountain. Adaptations of the polar bear. Normally हम ये जानते हैं कि बेयर जो है जो प्लेन रीजन्स में मिलते हैं दे आर हर्बीवोर. लेकिन जो पोलर बियर होता है दैट इज़ नॉट हर्बीवोर. लेट्स सी व्हाट आर अदर adaptations. Most of the bears do eat some plant matter, but where polar bears live, there is almost no plant matter available. So they have adapted to a totally carnivorous lifestyle. क्योंकि हम जानते हैं जो बियर होते हैं नॉर्मली दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स. लेकिन क्योंकि पोलर रीजन्स में हमेशा स्नोफॉल होता है तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में वेजिटेशन बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर. सो ऐसी प्लेसेस पे जो एनिमल्स होते हैं दे आर मोस्टली कार्निवोर्स. तो उनका जो लाइफस्टाइल है या जो उनकी बॉडी है इट इज़ अडेप्टेड लाइक ए कार्निवोर. थिक ब्लबर टू हेल्प कीप देम वार्म. इनकी बॉडी में क्या होता है? ब्लबर जो उनको वार्म रखता है. वाइट फर
is an obvious adaptation to the polar bear's life on the Arctic ice pack. It helps them hide in plain sight. तो इनकी बॉडी पर क्या होता है? वाइट थिक फर होता है जो उनको एक तरह से कैमोफ्लेज भी प्रोवाइड करता है, जिससे उनके जो एनिमीज़ होते हैं वो ईजिली उनको पहचान नहीं पाते हैं. कैमोफ्लेज मीन्स टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग. बॉडी का कलर ऐसा हो जाए जो उन्हें पहचानने में, उनके प्रीडेटर्स को पहचानने में या उनके एनिमीज़ को पहचानने में ईजी ना हो. तो दैट अडेप्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम एनिमल्स. बिग फरी फीट लाइक स्नो शूज़ टू हेल्प वॉक इन द स्नो. इनके फीट कैसे होते हैं? इनकी फीट पर फर होता है जो उनके लिए स्नो शूज़ का काम करता है, and they can walk easily in the snow with the help of these adaptations. Now let's see what are the adaptation in mountain plants. As you can see here, the plants, some of the plants have needle-shaped leaves. You can see here the leaves are very thin. This type of leaves are called needle-shaped. And the shape of the plant, you can see almost triangle. जैसे कि हम देखते हैं क्रिसमस ट्री, उसका शेप कैसा होता है? ट्राइंगल. सो द प्लांट्स दैट आर फाउंड ऑन माउंटेन्स, दे हैव ट्राइंगुलर शेप. दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस. अब स्लोपिंग ब्रांचेस से उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है? दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली. वो ईजिली स्लाइड कर जाती है आइस एंड वाटर, जो रेनफॉल होता है. अगर ये इस तरह का शेप ना हो तो वो उनकी लीफ पर जाकर के आइस या जो रेन है वो उनकी लीव्स को डैमेज कर सकते हैं. सो इस तरह का शेप होना उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू विंडी वेदर. अब क्योंकि माउंटेन है, वहाँ पर वेदर कैसी होगी? विंडी होती है, वहाँ पर वेदर तेज़ हवाएं चलती हैं. तो ऐसी सिचुएशन में उनकी लीव्स कैसी होती हैं? निडल शेप होती हैं. और निडल शेप होने की वजह से उनकी बॉडी से वाटर लॉस कम होगा. Deciduous trees shed their leaves before winters to prevent loss of water and better survive winters. Plants अपनी leaves को shed कर देते हैं. So these plants which shed their leaves are called as deciduous before winters. इससे वो अपनी बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड एक अच्छे तरीके से अपने आप को उस जगह पर सर्वाइव कर पाते हैं. Grassland. The another example of terrestrial habitat is grassland. Grassland किस तरह का habitat होता है? Mostly we see grasses, long grasses in this surrounding. Trees are very few. Trees are not so much there, but grasses are there in large areas. What do we see in the grassland area? We see so many plants with grasses, animals, various types of animals like lion, tiger, sheep, elephant, and so on. It means carnivores, herbivores, omnivores, all kind of animals we can see there. And there is a race between the predator and prey. What is this predator and prey? Let us know. A predator eats the prey. The hunter is the predator. The one who is hunted by the predator is the prey. It means predator कौन होते हैं? Predator वो animals होते हैं जो शिकार करते हैं, जो weaker animals को खाते हैं. And prey is the animal which is killed by the predator. So this race is there always in the grassland habitat. Let's see what are the adaptation in some of the animals here. For example, lion. You can see the body color. You can observe its eyes, their claws. All these are very important features
to survive in the grassland. Lion's light brown color helps it to hide in dry grasslands when it hunts for prey. तो जब लायन शिकार करता है, उसकी बॉडी का कलर उसमें बहुत हेल्प करता है. जो उनके प्रे होते हैं, जिन्हें वो किल करता है, उनके लिए मुश्किल हो जाती है लायन को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि लायन जो है वो ग्रास में इस तरह से ब्लेंड हो जाता है कि वहाँ से वो लायन अपनी बॉडी कलर की वजह से दिखाई नहीं देता. एंड दिस हेल्प द लायन टू किल इट्स प्रेस. द आइज आर इन फ्रंट. जो आइज होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आइज ऑफ द लायन, दीज आर इन द फ्रंट, आगे की तरफ होती हैं. इससे उन्हें एग्जैक्टली अपने प्रे को लोकेट करने में हेल्प मिलती है. लायंस हैव लॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर लॉन्ग एंड शार्प क्लॉ जो अंदर की तरफ मुड़ी होती है. ये लायन को अपने प्रे को होल्ड करने के लिए, उनका शिकार करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं. लायन इज स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स. लायन जो क्या है, वो कैसा एनिमल, बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है, बहुत तेज़ दौड़ने वाला एनिमल है, और अपने प्रे को एग्जैक्टली ये निशाना बना करके किल करने में कैपेबल है. तो ये सारी इनकी जो बॉडी के अडेप्टेशंस हैं, इनको वहाँ पर ग्रासलैंड में सर्वाइव करने में बहुत हेल्पफुल हैं. अनदर एनिमल एग्जाम्पल, डियर. अब डियर क्या है, हर्बीवोर है. तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा, इसको हमेशा ये डर रहेगा कि इसका प्रीडेटर आकर इसको खाना जाए. सो it also has many adaptations to save his life. What he has strong teeth for chewing hard plant stems of the forest. कैसे होते हैं इनके टीथ, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक हर्बीवोर एनिमल है, तो इसको प्लांट्स की लीव्स, ब्रांचेस, उनको खाने के लिए जो इनके इंसिजर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. ए डियर हैज़ लॉन्ग ईयर्स. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, लॉन्ग ईयर्स. इससे वो अपने आसपास अपने प्रेडेटर्स के मूवमेंट को या जो उनके सराउंडिंग में आवाज़ें आ रही हैं, उनको वो ईज़िली सुन सकते हैं. द आइज़ आर ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड. जो आइज़ होते हैं वो हेड के साइड में होती हैं. दिस अलाउ it to look in all directions of danger. ये eyes helpful हैं सभी directions में देखने के लिए. The speed of the deer, it is very important, helps them to run away from the predators. इनके आप देख सकते हो कि legs बहुत strong होते हैं and इन्हें बहुत speedily run करने में help करते हैं. Again, the brown color of the body, it helps them to hide in the grassland. So that's all, children, in this part. Thanks for watching, and we will continue in the next part.